Okay, proceeding further, we come to the next concept, which is solution of differential equation. Now what is solution of differential equation? Here are four equations given to you. Okay, y is equal to sin x, y is equal to e raised to x plus e raised to minus 2x, dy by dx is equal to cos x, and d square y by dx square is equal to 4y. This dy by dx is equal to cos x and d square y by dx square is equal to 4y. These are differential equations, whereas these are not the differential equations. Okay, but you can see one thing. This is y is equal to sin x. If we differentiate this, y is equal to sin x. Okay, what we get? We get dy by dx equal to cos x. Means we get this differential equation from here. How? By integrating it. By differentiating it. Okay. Once again, see this. D square by dx square is equal to 4y, and see this. If you differentiate this 2 times, you will come to this step. Okay. See. First differentiation leads to dy by dx is equal to, first differentiation leads to dy by dx equal to 2 e raised to 2x minus 2 e raised to minus 2x. Second differentiation leads to d square y by dx square. This is equal to 4 e raised to 2x plus 4 e raised to minus 2x. Okay, and this taking 4 common, you get e raised to 2x plus e raised to minus 2x, and this gives you 4y. Okay, तो आप देख सकते हो, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है. ओके, सो दिस y is equal to sin x and this y is equal to e raised to x plus e raised to minus 2x. These are called solutions of differential equation. Now what are solution? Solution of differential equation, it is the relation between independent variable x and dependent variable y such that derivative obtained from it is the differential equation. Derivative obtained from it is the differential equation. मतलब ये रिलेशन है और इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. ओके, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द relation between the independent variable x and the dependent variable y such that derivative obtained from it is the differential equation. अब solution भी दो तरह के हैं. Okay, solutions are of two types. Solutions दो टाइप के हैं. पहला है जनरल सोल्यूशन, containing arbitrary constant. जनरल सोल्यूशन क्या है? Which contains arbitrary constants. It contains arbitrary constant and number of arbitrary constant is equal to order of differential equation. इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं. अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके, आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या रहते हैं? सी, कांस्टेंट्स दो तरह के रहते हैं. एक रहता है फिक्स कांस्टेंट और एक रहता है आर्बिट्री कांस्टेंट. फिक्स कांस्टेंट वो रहता है जिसकी वैल्यू आप कहीं भी जाइए चेंज नहीं होगी, और आर्बिट्री कांस्टेंट वो रहता है जिसकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती है लेकिन उन कंडीशंस में जाके फिक्स हो जाती है. ओके, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं फिक्स वैल्यू की बात करूं तो अब जितने नंबर्स है वो सारे फिक्स वैल्यूज है. सपोज नंबर 2, आप यहाँ पे 2 कहिए तो इसका मतलब 2 होगा. आप किसी और देश में जाके 2 कहिए तो उसका नंबर 2 होगा. आप किसी और कॉन्टिनेंट में जाके 2 कहिए तो उसका मीनिंग 2 होगा. यूनिवर्स में कहीं भी जाइए 2 मतलब 2 ही रहेगा. ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं. ठीक है, उनके वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, दो दे बिकम फिक्स ऑन डैट. ओके, अब जैसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कुछ और है, पोल्स पे कुछ और है.
लेकिन इक्वेटर पे जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वहाँ पे उतनी फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। वैसे पोल्स पे जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वहाँ पे फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। जनरली हम जो लेते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, बट वी नो डैट इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू पोल एंड इक्वेटर। तो एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रही है, लेकिन फिर जिस कंडीशन में जा रही है वहाँ फिक्स हो गई। इक्वेटर पे जितनी है तो उतनी ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, और पोल्स पे जितनी है उतनी है, वो वहाँ पे चेंज नहीं होती, ठीक है। सो दीज आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ओके। तो जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ओके, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर 1 है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 ही आएगा, वी कैन से यर, ठीक है, सी। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, और c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू a ई रेस टू 2x प्लस b ई रेस टू माइनस 2x, ओके, क्लियर। एक और बात याद रखिएगा, जनरल सोल्यूशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है ना, ओके, ऑल्सो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन DE. DE means differential equation. Also arbitrary constants are not present in DE. डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू cos x आ गया, c है नहीं है। यहाँ पे देखिए, इससे भी आप 2 बार जब डिफरेंशियल करोगे ना, और आप फिर से 4 कॉमन लोगे, जैसे 4 कॉमन लिया है, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपको a ई रेस टू 2x प्लस b ई रेस टू माइनस 2x आएगा, मीन्स यू गेट y। सो देयर शुड बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट, आपको वहाँ से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। So solutions are 2 types. One is general solution. It contains the arbitrary constants. Number of arbitrary constant, it is equal to order of differential equation. And in the differential equation, arbitrary constants are eliminated. Okay. दूसरा है particular solution. दूसरा है particular solution. Okay. Giving particular values to arbitrary constants. गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उनको यदि आप पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है c, अगर इस c को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, सपोज 5, ओके, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5। तो ये जो है ना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गई, ओके। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस c, ये आर्बिट्री मीन्स ये हो गई जनरल सोल्यूशन। दिस इज द जनरल सोल्यूशन, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। जनरल पर्टिकुलर बिल्कुल वही मीनिंग है जो हम जनरली देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई लिखा हुआ है कि शू शॉप, ओके, महेश फुटवेयर, सपोज, ओके, महेश फुटवेयर, तो यहाँ पे हर प्रकार के जूते आपको मिलेंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी को, तो वो जनरल हो गया, ओके। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखा जाए बाटा शोरूम, तो बाटा शोरूम का सीधे सीधा अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ बाटा के ही शूज़ मिलेंगे और किसी कंपनी के आपको शूज़ नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर। जब हम महेश फुटवेयर की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपको किसी भी कंपनी के शूज़ मिल सकते हैं, वो जनरल हो गया। और जब हम बाटा शोरूम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जनरल हो गया, आपको सिर्फ बाटा के ही शूज़ मिलेंगे, ओके, क्लियर। वैसे ही जनरल सोल्यूशन उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन उसमें वो c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ सकती है, ओके। सो दिस इज अबाउट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। प्लीज नोट इट डाउन।